So there was one question which was that if you have 1 lakh rupees for trading, if somebody has 1 lakh rupees, how he will utilize in the different trades. So that I would like to answer here. Okay, and this is very important question. Actually, I would like to everybody will know about the answer to this question, and I think everybody will agree with whatever I am going to discuss right now. So everybody should understand this key, like that 1 lakh rupees. First of all, you should understand that key 1 lakh rupees, they have different value for different individuals. Okay, mainly it depend on how you have earned that 1 lakh rupees. Okay, suppose you are somebody who is having a job of, let's say, 2 to 3 lakhs rupees per month. So for him, this 1 lakh rupees is like earning back this 1 lakh rupees is comparatively easier. You know, next month's salary, or maybe the month after that, he will manage this. Okay, but if somebody is there who is having a salary of lesser amount, let's say 50K or 30K, so for him this 1 lakh rupees is very bigger amount comparatively. Okay, so it can depend on a lot of other factors also, how you earn this money. So that reason is personal to you. I won't go through that, but you should always understand what is your perception with this trading capital. Whatever trading capital you are having, what is your perception for that, परसेप्शन विद दैट, है ना. यू शुड हैव दैट आइडिया इन माइंड. आप रेकलेसली ट्रेड नहीं कर सकते इफ यू हैव, लेट्स से, कंपैरेटिवली लेसर सोर्स ऑफ इनकम. बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेडिंग मार्केट में पहले तो आपका कुछ और सोर्स होना चाहिए ना. मार्केट रिक्वायर्स इनिशियल कैपिटल. So how you have generated that capital, that depend, like that affects a lot of your psychology. ठीक है. So suppose, and that's why I tell you कि like there are, मतलब sometimes I tell ना कि safe traders can book, or conservative traders, or your account size is there. So that is the reason there. ठीक है, for all those things. And second thing is that if you have very so uh, let's say you have 1 lakh capital. Okay, and for this 1 lakh capital, from this 1 lakh capital, I would like to tell you that you have to every day think that how much is the risk you can take. ठीक है, what is the maximum risk you can take. Let's say suppose somebody is there who have this who can refill this 1 lakh rupees comparatively easier. So for that they can take higher risk, let's say 10K or 20K. ठीक है, but if somebody is there who wants to be very conservative, है ना, because he wants to protect this 1 lakh rupees very dearly, so he will obviously go with lesser risk, or 1K or 2K max. ठीक है, अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि फिर ज्यादा रिस्क क्यों लेना जब कम रिस्क में भी काम चल सकता है. तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि रिवॉर्ड इज ए फंक्शन ऑफ रिस्क ओनली. ठीक है, जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे रिवॉर्ड भी उतना ज्यादा आ जाएगा. तो फिर जो रिस्क जिन्होंने ज्यादा लिया, 10 या 20 हजार रुपए का रिस्क लिया है, तो वो रिवॉर्ड भी एक्सपेक्ट करें 20-40K का हो एटलीस्ट. ठीक है, और सेम टाइम पे अगर कोई बंदा 1-2 हजार का रिस्क ले रहा है, तो फिर वो एक्सपेक्ट करेगा 1-2-3 हजार का ही प्रॉफिट हो. ठीक है, सो रिवॉर्ड एंड रिस्क दे गो हैंड इन हैंड. So this you have to understand from your point of view only. And the factor which you have to give very मतलब high importance is that कि how you have earned that money. वो आप हमेशा याद रखिए. आपके अकाउंट में आने के बाद भूल मत जाना कि वो पैसा कैसे आया है. ठीक है, क्योंकि फिर वहीं से आपका रिस्क परसेप्शन चेंज हो जाता है. सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि हाउ मच यू कैन रिस्क फॉर दैट डे. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड कि हाउ मच यू कैन रिस्क पर ट्रेड. तो यूजुअली क्या होता है, सिग्नल चैनल में आई गो विथ 2 or 3 ट्रेड्स पर डे इंडेक्स में. ठीक है, एंड इफ आई गो विथ लाइक स्टॉक्स का कोई ट्रेड मिले तो फिर वो 1 या 2 उसके ट्रेड्स आते हैं. ठीक है, एंड समटाइम्स अगर किसी दिन कम इंडेक्स में ट्रेड हो, एक्सपायरी के दिन ये नंबर्स बढ़ जाता है, तो 4-5 भी जा सकता है. ठीक, तो आई टेंड टू कीप द नंबर ऑफ ट्रेड्स मिनिमम. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आई हार्डली टेक लाइक नंबर मिनिमम करने से क्या प्रॉफिट मिलता है, उसमें ये होता है कि देखो, अब जैसे मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर थोड़ी देर के लिए सपोज नीचे आया, है ना, इफ मार्केट वेंट अपवर्ड्स, फिर थोड़ी देर के लिए नीचे आएगा, तो फिर आई वोंट गो विथ पुट, है ना. मतलब मैं व्यू बहुत जल्दी चेंज नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है मुझे 2 या 3 ट्रेड ही लेने हैं, और 2-3 ट्रेड मुझे हो सकता है 2 बजे भी मिल जाएंगे, है ना. एज एन ऑप्शन बायर वैसे भी हमारा जो 11 बजे से लेकर के 2 बजे का टाइम है, वो तो बिल्कुल डल पीरियड रहता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं आता, कुछ वॉल्यूम, कुछ मोमेंटम रहता नहीं, तो उसमें मैं मैक्सिमम लॉसेस ही होते हैं. तो इसलिए आई टेंड टू अवॉइड मार्केट इन बिटवीन. इनफैक्ट 10:30 11 से लेकर के 2 तक में कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ. अगर कोई अच्छा ट्रेड मिल जाए तो फिर अलग बात है. सो द थिंग इज,
सो इफ यू हैव टू टेक ओनली 2 or 3 ट्रेड्स, तो फिर यू कैन वेट फॉर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आपको इमीडिएटली कि अभी सपोज यू आर बाइंग कॉल्स इन दिस, तो आपको सपोज इसमें कल थे आप, है ना, आपने कॉल बाय करके रखा था, मार्केट नीचे, आपको लॉस हो गया, तो ये तुरंत फिर पुट बाय नहीं करना है, या तुरंत आपको वो नहीं करना, क्योंकि मार्केट रिवर्ट भी होता है, ठीक है। और ये गलती सबसे ज्यादा होती है बिगिनर फेज में, ये गलती बहुत ज्यादा होती है, जिसमें लॉस होता है तुरंत उसका अपोजिट पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि हमें लॉस को तुरंत रिकवर करना होता है। ऐसा नहीं है, मार्केट में आप काफी दिनों के लिए हो, ठीक है, आज नहीं रिकवर होगा, कल हो जाएगा, इस वीक नहीं होगा, अगले वीक हो जाएगा, ठीक है, इट टेक्स टाइम। तो तुरंत आप अपोजिट पोजीशन मत लो, क्योंकि मार्केट उसको फिर तुरंत आपका ले जाएगा, दोनों साइड से प्रॉफिट ले जाएगा। सो द मोरल ऑफ डिस्कशन वाज दैट कि यू आर गोइंग टू टेक ओनली 2 or 3 गुड ट्रेड्स, ठीक है। उससे ज्यादा ट्रेड मिलते भी नहीं है एक दिन में, इंट्राडे में, है ना। तो 2-3 ट्रेड अगर आप ले रहे हो, और सपोज यू हैव रिस्क एपेटाइट ऑफ 10K, तो फिर यू हैव टू डिसाइड। तो व्हाट आई डू, एंड 10K भी काफी ज्यादा रिस्क हो जाएगा, सो आई वुड लाइक टू टेल कि चलो 1 लाख में अगर आप 5,000 का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, सपोज, तो दिस इज जस्ट ए लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल, बिकॉज एवरीबडी हैज डिफरेंट डिफरेंट रिस्क एपेटाइट ना, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो सपोज यू हैव द रिस्क एपेटाइट ऑफ 5,000 कि एक दिन में मैक्सिमम लॉस में 5,000 का लूंगा, तो आपको क्या करना है, फिर सेकेंड थिंग आपको ये करनी है कि, और आपको 3 ट्रेड लेने हैं पर डे, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि डिवाइड दिस कैपिटल इनटू 2 पार्ट्स, 2.5K and 2.5K for initial 2 trades, or even you can go with 2K for 1 trade and 3K for next trade. So 2 ट्रेड्स में आप डिवाइड करो, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड सपोज द ट्रेड फर्स्ट ट्रेड यू टेक, ठीक है, और सपोज फर्स्ट ट्रेड यू टेक विद 3K, अब उसमें आपने 3K में लिया, आपको प्रॉफिट हो गया, चलो 1,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, आपने हाफ क्वांटिटी 1,000 प्रॉफिट में बुक कर ली, हाफ में अपने कॉस्ट पे से लगा लिया, वो हिट हो गया, स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट टू कॉस्ट, तो 1,000 का प्रॉफिट मिल गया। अब आपका रिस्क एपेटाइट जो दिन भर का था 5,000 का, अब वो बढ़ के 6,000 हो गया। अब नेक्स्ट सेकेंड ट्रेड में भी आप 3,000 का रिस्क ले सकते हो, और सपोज इसमें आप ब्रेक इवन में निकल गए, ठीक है, तो अभी भी आपका थर्ड ट्रेड जो है उसमें अभी भी आपका 6,000 का रिस्क ले सकते हो आप, है ना, बिकॉज आपने 1,000 का प्रॉफिट बनाया, इसमें ब्रेक इवन में निकल गए, और थर्ड ट्रेड के लिए आपको 6,000 बचा है। आप चाहो तो पूरा रिस्क इसी में ले लो, अब चाहो तो आप अपना हाफ कर लो, ठीक है, अभी आप 3K का रिस्क ले लो, और इसमें सपोज आपका ट्रेड अच्छा चल गया, आपका डबल हो गया, तो 3K का प्रॉफिट मिल गया, तो ओवरऑल आप 4,000 के प्रॉफिट में आपने दिन क्लोज कर दिया, ठीक है। दैट इज वन सिनेरियो। एंड सपोज यू टेक फर्स्ट ट्रेड, ठीक है, जिसमें यू हैव यूज्ड कैपिटल ऑफ 3K। अब 3K का नॉट कैपिटल, 3K का रिस्क लिया आपने, तो 3K का रिस्क यू हैव टेकन, एंड सपोज योर स्टॉप लॉस हिट इमीडिएटली, ठीक है, पूरा कंप्लीट स्टॉप लॉस, ट्रेल वेल करने का कुछ मौका नहीं मिला, तो -3K हो गया आपका। अब आपका टोटल रिस्क एपेटाइट कितना था, 5K, ठीक है, तो अब 3K तो आपका पहले ट्रेड में हट गया, सेकंड ट्रेड आप फिर लोगे तो उसमें 2,000 का ही रिस्क लोगे, ठीक है। अब अगर इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो फिर यू हैव टू क्लोज फॉर द डे, तीसरा ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट 2 ट्रेड्स में अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस था, तो फिर यू कैन गो विद दिस, ओके। और सपोज यू हैव इन दिस सेकेंड ट्रेड यू मेक सम मनी, तो 2,000 का रिस्क, अब आपने सपोज सेकेंड ट्रेड में अपने 1,000 का प्रॉफिट बना लिया, तो नाउ योर रिस्क एपेटाइट विल इंक्रीज टू 3K, you will be using that 3K for third trade, okay. So this is the way you can manage this your risk in each day and each trade, ठीक है। And at any point of time if you feel that you have lost comparatively bigger amount of money जो आपको नहीं लॉस होना चाहिए, तो फिर आप you can close for the day, you can come back fresh next day. एंड सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जब भी मैं ये बोलता हूँ कि रिस्की ट्रेड है या फिर क्वांटिटी लेस, तो वहां पे आपको फिर अपना तुरंत हाफ कर देना, 3,000 का रिस्क लेके चल रहे थे आप, उसको 1,000 या 2,000 का रिस्क कर दूँ, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि ये रिस्क होता क्या है, रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रिस्क सिंपली व्हाट इज योर एंट्री पॉइंट, लेट्स से योर एंट्री इज प्राइस इज 50, ठीक है, एंड योर स्टॉप लॉस इज 20, so you have 30 points in risk, okay. That means if this is nifty, so that means what will happen, so 1,500 rupees will be your risk per lot, okay. So this is the way you have to now obviously entry is fixed, stop loss is fixed, so the thing which you can change is your quantity, ठीक है। सपोज यू वांट टू टेक लेट से 3K का रिस्क लेना चाहते हो, तो आप 2 लॉट ले लो, ठीक है। आप अगर सिर्फ 1,000 का रिस्क लेना चाहते हो, तो फिर आप ये ट्रेड अवॉइड करो, इसमें नहीं बन रहे हैं, दूसरे ट्रेड
वेट करो। आप चाहो तो कई लोग ऐसे हैं जो ज्यादा रिस्क भी लेते हैं, तो वो लोग जैसे सपोज हैं 3,000 4,000 का रिस्क ले रहे हैं, तो फिर वो मल्टीपल लॉट्स ले सकते हैं। ठीक है। सो एंट्री एंड स्टॉप लॉस इज ऑलवेज फिक्स्ड, और आपका जो वो है वो चेंज होता है क्वांटिटी, एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव सीन आई बिलीव इन एग्रेसिव ट्रेडिंग। मतलब मैं कई बार जब मुझे लगता है कि नहीं मार्केट मूव नहीं कर रहा है या डेटा में कुछ वीकनेस आ गई है या डेटा अनक्लियर है कुछ भी, तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस ट्रेड करूँ। ठीक है, हो सकता है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए फिर मार्केट मेरे फेवर में मूव कर जाए, बट आई एम ओके विद दैट। अगर मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया पास ले आया तो फिर दैट्स गुड इनफ, क्योंकि फिर उसमें जो पैसे बचेंगे उसका यूज करके मैं नेक्स्ट ट्रेड ले सकता हूँ ना। ओके, सो इज दैट क्लियर? There is one message. So in a nutshell, we should first define how much are we comfortable with the drawdown for any day, and then balance the risk reward for the trades of the day as per your explanation. Yeah, definitely, definitely. That's the idea, Harjeet. है ना, ऑलवेज सी हाउ मच यू कैन लूज। ठीक है, अगर आप ये करोगे ना तो ऑप्शन बाइंग में आप नहीं लॉस होगा उतना। ठीक है, प्रॉफिट का पोटेंशियल तो कितना है आपने देख ही लिया ऑप्शन बैंक में, है ना। कल 20 रुपए का ऑप्शन 200 गया आपके सामने थर्सडे को, है ना। कल भी अच्छा खासा डबल हो गया ऑप्शन। तो पोटेंशियल तो है, बट हमें क्या मैनेज करना है, रिस्क। ठीक है, हमें रिवॉर्ड के पीछे उतना नहीं भागना जितना हमें रिस्क के पीछे भागना, मतलब रिस्क को मैनेज करना है। इफ यू आर एबल टू मैनेज द रिस्क ऑब्वियसली। और वन फ्यू थिंग्स आई वुड लाइक टू सजेस्ट गाइस, दो तीन चीजें आखिरी में पार्टिंग थॉट्स रहेंगी। पहली बात कि रिवेंज ट्रेडिंग पे मत जाना कभी। ठीक है, हो सकता है कभी सिग्नल चैनल में भी लॉसेस हो जाए, हो सकता है शुरू में एक दो ट्रेड में लॉस हो गया, तो स्टे बैक। ठीक है, कूल एंड काम हुई है, आप जाइए कोई नेटफ्लिक्स में सीरीज देखिए या कहीं चले जाओ डिनर पे लंच पे कुछ भी, मार्केट को थोड़ा सा टाइम न्यूट्रल होने दो। ठीक है, दो एक दो दिन के बाद आप आओगे ना तो आप फिर वापस अपने फ्रेश तरीके से ट्रेड ले पाओगे। उसी दिन रिवेंज लेकर के उसी दिन हमें प्रॉफिट जनरेट करना है, अगर आप ये सोचोगे ना तो फिर आपका अकाउंट पूरा डैमेज होगा। ठीक है, सो अकाउंट मैनेजमेंट आपको खुद करना है। ट्रेड्स और ट्रेड मैनेजमेंट वगैरह आपको सीनियर से मिलने लगे, अकाउंट तो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा ना, कि हाउ मच यू रिस्क यू आर टेकिंग। सपोज पहला ट्रेड मैंने दिया दिन का, आपने उसमें पूरे 1 लाख रुपए ले लिए, सारे ऑप्शन खरीद लिए, और सेकेंड ट्रेड जब मैं दिया उसमें सपोज गलती स्टॉप लॉस सेट हो गया, तो उसमें अच्छा खासा, क्योंकि भाई 50 रुपीज का एंट्री है और 20 रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो आप समझ लो ये 50% ज्यादा का स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप पूरा 1 लाख रुपए का ले लेते हो इसको और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो ये सीधे सीधे आपका जो है कितना 60,000 का लॉस हो जाएगा, 40,000 ही बचेंगे फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए। तो समझे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नेवर गो विथ फुल क्वांटिटी। ठीक है, वो कैपिटल है वो किसी और चीज के लिए है ना, मतलब वो दो तीन ट्रेड लोगे या स्टॉक्स में लोगे उसके लिए है, बट हमेशा ये नहीं कि आप जो है मतलब 1 लाख है तो पूरे 1 लाख का ले लिया। और कभी भी ये भी मत सोचना कि ये ऑप्शन यहाँ से यहाँ गया, नेवर रिग्रेट एनीथिंग। ठीक है, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ लॉट्स ऑफ रिग्रेट्स, तो ट्रेडिंग में कोशिश करना रिग्रेट कम से कम हो। कोई ऑप्शन आप यहाँ पे थे और ये यहाँ तक चला गया और उसमें अपने स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करा के आप निकल गए थे, तो नेवर रिग्रेट अबाउट दैट। ठीक है, बिकॉज यू विल गेट मच मोर अपॉर्चुनिटी। बट अगर आप वो स्टॉप लॉस नहीं हिट होता और आप अगेंस्ट में चले जाते हैं, है ना, सपोज यहाँ उस दिन पुट बाय किया होता पूरे फोर्स के साथ में, क्योंकि चांसेस थे 43 से रिवर्सल के भी चांसेस, अगर पुट बाय किया होता तो फिर वो पूरे लॉस चला जाता। सो दीज थिंग्स आर देयर, है ना, ऑलवेज ट्राई टू मैनेज द रिस्क एंड यू विल गो फार, है ना, गो फार गो बिग। That is the idea with this. Okay. So thank you everyone. Let's ये बहुत अच्छा कमेंट है, ये जो गौरव ने किया, ये तो मेरा दिन बन गया कि ऐसा लगा जैसे कोई अपना भाई समझा रहा हो। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू एवरीवन, है ना, और दैट वाज माय थॉट। एक्चुअली ये जो दोनों दिन के ट्रेड्स थे ना, मुझे था कि एक्सप्लेन तो करना ही है, क्योंकि ये फिर आप लोगों को काम आएंगे, हो सकता है आप लोग रहो नहीं सिग्नल्स में, रहो ना रहो, है ना, लेकिन ये जो लर्निंग्स हैं ये तो रहनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई थॉट yesterday night कि I can squeeze out 1 hour and I can manage this that I have done. So I hope this was very useful for you, and thank you, thank you so much, thank you so much everyone. Have a very very happy new year.
Wishing you all very happy, prosperous, and very fruitful, as well as very profitable new year 2023. And I hope you all become multimillionaires in this next coming year. Okay. And I will be there. I'll be helping you as much as possible. Okay. Or the only thing that I require from your side is have faith. थिंग्स विल टर्न आउट. ठीक है, ऑप्शन बैंक में यही होता है, 2 दिन में आप ना पूरे महीने भर का पैसा बना लोगे. ठीक है, हो सकता है फिर मतलब. So इसलिए always have faith, है ना, always have faith in your capabilities, and most importantly always have faith in the data. Data will guide you to the places which you have never imagined. Okay, 2022 was very like a great year for me actually, and I hope it was the same for you also, you guys also, and 2023 will make it much better than 2022. Okay, I'll keep working towards those areas. Right now I'm in process of finding newer areas where you can exploit those things. ठीक है, जैसे रिजल्ट बेस्ड ट्रेड we have exploited a lot. एक्सपायरी ट्रेड्स पे हमारी काफी नजर रहती है. ठीक है, उसको भी एक्सप्लोइट करने की मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल मैक्सिमम हो. ठीक है, अभी ये रीबैलेंसिंग वाला है. इसके अलावा भी कुछ एरियाज हैं जिन पे काम चल रहे हैं, उस पर रिसर्च चल रही है. हो सकता है आइडिया मतलब उसमें से कुछ जनरेट, जैसे क्योंकि वाइड डेटा रीडिंग का जो कंसेप्ट है ना, वो भी ऐसी डेटा डिगिंग से आया है. वो कहीं से ऐसे सीखा नहीं है, जो एक टॉपिक कंसेप्ट है और वो सारी चीजें हैं. ठीक है, वो सारी तो जो भी नए एरिया में काम होगा, जो भी चीजें लर्निंग के लिए मिलेगी, दैट आई विल कीप शेयरिंग विथ यू ऑल. ठीक है, एंड नाउ डेज द ओनली वे टू कनेक्ट विथ मी इज द सिग्नल चैनल. तो वहां पे मैं सारी चीजें शेयर करता रहूंगा अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड्स ऑल्सो. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. हैव अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड एंजॉय द वीकेंड. ओके, थैंक यू सो मच. लेट्स एंड दिस सेशन. श्योर श्योर रंजन, श्योर. थैंक यू.